Good morning, students. Today we are going to start part 5 of chapter 2, Is Matter Around Us Pure? In the last video we have discussed about the concentration of a solution and ways of expressing concentration of solution, mass by mass percentage and volume by volume percentage of solution. Okay, and on the basis of this we have solved some numericals also. I hope you all understood that video part 4. So today we will read saturated and unsaturated solution, which is related to concentration of a solution. Okay, and we'll read about solubility, and after that something different topic, physical and chemical change, which you have already studied in your lower classes. Again we'll revise it. Okay, so let's start from the first topic, saturated and unsaturated solution. Here you can see saturated and unsaturated solution. First, saturated solution. What is saturated solution? See the definition: a solution in which no more solute can be dissolved at that temperature. At that temperature is called a saturated solution. मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हियर इंपॉर्टेंट टर्म इज, विच इज द इंपॉर्टेंट टर्म हियर? एट दैट टेम्परेचर मीन्स एट गिवन टेम्परेचर. Okay, temperature should remain constant. Don't provide the heat, otherwise temperature will increase. It should be remain constant at that temperature, means at given temperature. At that time, at that condition, we can't add more solute. No more solute can be dissolved. That solution is saturated solution. जो आपको temperature दिया गया है उसी temperature पे आप heat provide नहीं करेंगे आप, ठीक है. रूम टेम्परेचर पर ही जो टेम्परेचर है उसी पर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे. मीन्स यू आर टेकिंग द वाटर, सॉल्वेंट लेंगे, उस पर क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, लाइक शुगर और सॉल्ट, वॉट एवर यू कैन यूज़. उसमें जब डालते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें वो और ज़्यादा सॉल्यूट जो है और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाएगा. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यू कैन प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट योर होम ऑल्सो. यूज अ ग्लास tumbler you have to take instead of steel tumbler. Okay, take a glass of water. Again I am repeating, use glass tumbler. Okay, and in this you have to take water, add more and more salt to it and dissolve it. एक टाइम ऐसा आएगा no more solute can be dissolved. Salt will settle down at the bottom. It will not dissolve. At that time you can understand that solution is saturated solution. अब उस solution को क्या करेंगे आप, strainer के through strain कर लेंगे, and that getting solution is saturated solution. Okay, clear? A solution in which no more solute can be dissolved. और ज़्यादा solute dissolve नहीं कर सकते. At that temperature, उसी temperature से, we are not raising the temperature or we are not decreasing the temperature. At the same temperature you have to do that. Okay, that solution is called the saturated solution. Now point number 2, unsaturated solution. It is just opposite of the saturated solution. See the definition: a solution in which more quantity of solute can be dissolved. You can add more or more solute, okay, without raising its temperature. Again, temperature is most important term here. Without raising the temperature, you have to decrease or not increase the temperature. Temperature remain constant. Okay, is called an unsaturated solution. Again repeating, this is just opposite of saturated solution. A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called unsaturated solution.
Again, temperature is most important term here. If you will increase or decrease the temperature, you can dissolve more solute. To the temperature should remain constant. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्यूट और डिजॉल्व होता जाएगा. बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप द टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट व्हेन you are preparing saturated or unsaturated solution. In unsaturated solution you can dissolve solute, more or more solute in quantity or amount. So saturated solution क्या होगा, no more solute can be dissolved. Unsaturated solution क्या होगा, more solute can be dissolved. Okay, next about solubility. Solubility क्या होता है, the maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at specified temperature is known as the solubility of that solute. Definition से ही समझ में आ रहा है, maximum amount of solute, कितना ज़्यादा amount of solute of 100 gram of solvent में dissolve कर सकते हैं, that is called the solubility. Suppose you have taken 100 gram of water. Okay, in this 100 gram of water how much solute you can dissolve, that amount of solute is called the solubility of that solute. समझ में आ रही है बात. यहाँ पे important term है at a specified temperature. Temperature specified होना चाहिए. Temperature must be specified because solubility depends on temperature. Solubility depends on temperature. Let's see here. Suppose you are taking a beaker. इस बीकर में हमने डाला 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट. फॉर्मूला होता है KNO3. ठीक है, दिस इज अ केमिकल एंड इट्स फॉर्मूला इज KNO3. ठीक है, इसमें हमने लिया 100 ग्राम वाटर. 100 ग्राम वाटर. Suppose you have taken a beaker and in this beaker you have taken 100 gram water and this beaker you are and temperature will be the constant. Temperature आपका constant होगा. Suppose आपका room temperature है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं काम. Don't provide the heat, otherwise temperature will increase. Okay. So in this beaker you are taking 100, I am taking 100 gram of water and 32 gram potassium nitrate I am adding and temperature is 27 degree centigrade. अब इस 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से और ज़्यादा डिजॉल्व हम नहीं कर सकते. एक टाइम ऐसा आएगा. ठीक है, मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 27 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 32 ग्राम. क्या हो जाएगा, 32 ग्राम. मतलब कि आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने 100 ग्राम वाटर लिया. 100 ग्राम वाटर लेने के बाद क्या हुआ, आपने उसमें 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डाला. आपने थोड़ा थोड़ा करके डाला. 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट के बाद इससे ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता. मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी पोटेशियम नाइट्रेट की, 32 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस. मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट. तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 32 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस. क्लियर, दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट. Next we'll see the numerical question. See the question. 12 gram of potassium sulfate dissolves in 75 gram of water at 60 degrees Celsius. 12 gram of potassium sulfate dissolved in 75 gram of water at 60 degrees Celsius. What is its solubility in water at that temperature? Suppose you are having a beaker. इस बीकर में आपका 75 ग्राम आपका कितना है, वाटर है. ठीक है, आपने डाला 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट.
पोटेशियम सल्फेट, टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन 75 ग्राम ऑफ वाटर 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व। सो 75 ग्राम में आप पोटेशियम सल्फेट जो है 12 ग्राम डाल रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट इन 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ वाटर, अगर 100 ग्राम वाटर का अमाउंट है तो पोटेशियम सल्फेट कितना उसमें डिजोल्व होगा भाई। तो ये तो आपको क्या करना होगा, फिर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ वाटर 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व। सो इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट कितना होगा, 12/75। ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट कितना हो जाएगा, 12/75 इंटू 100। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 25 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो ना, 25 3 जा, ठीक है, 3 जा 25 3 जा आपका 75 एंड 25 4 जा 100। अगेन कैंसल इट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 4 × 4 क्या बच रहा है यहाँ पे, 4 × 4 इक्वल टू 16 and gram, 16 gram you are getting. Hence solubility of potassium sulfate in is 16 gram at 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पे आपने कितना पाया, 16 ग्राम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, दिस इज द this topic physical and chemical change you have already studied in your lower classes. Okay, physical change क्या होता है, first point is no new substance is formed in a physical change. physical change होता है तो कोई नया substance नहीं बनता है। chemical change क्या होगा, a new substance is formed in a chemical change. chemical change में एक नया substance फॉर्म होता है। कैसे, देखो, फर्स्ट पॉइंट नंबर 2, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। ये एक टेम्पररी चेंज होता है, टेम्पररी चेंज होता है। एंड केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ओके, पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अ फिजिकल चेंज इज ईजली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है वो ईजिली आपका रिवर्सिबल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इन केमिकल चेंज अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से देखेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो इसके देखो फिजिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है, उसकी स्टेट पे चेंज हो सकता है, कलर पे चेंज हो सकता है। ठीक है, कलर, शेप, साइज, ये सब पे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 इज मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो उसके फिजिकल स्टेट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, वो फिर से वाटर पे आ रहा है। रोलिंग ऑफ चपाती, चपाती को रोल कर रहे हो मीन्स फिर से उसको आटे के फॉर्म में ला सकते हैं, डो है। ठीक है, लोई से आप चपाती आपने रोल किया, चपाती से आप फिर से उसको डो बना सकते हो। ठीक है, कटिंग ऑफ वुड, वुड को आपने कटिंग किया, आपके पास एक लॉग है लंबा सा, ठीक है, आपने उसको पीसेस में कट किया तो उसका साइज में इफेक्ट हुआ है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर आप बॉईल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वेपर में चेंज हो रहा है, बट उसको कूल डाउन करने पर अगेन इट विल कम इन वाटर। फ्रीजिंग ऑफ आइस, आइस को फ्रीजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका, वाटर क्या है, आइस में चेंज हो रहा है, फिर से उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर ले आओगे, जब आइस को फ्रीज से निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो वाटर फॉर्म में आ जाएगा। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना भी एक क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज होता है। इसमें क्या हो रहा है आपका, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो फिलामेंट की वजह से जो है ग्लो हो रहा है बल्ब। ठीक है, और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से फिलामेंट ग्लो करना बंद कर दे रहा है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है वेरी लिटिल हीट और एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब, बहुत ही कम एनर्जी
या फिर हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वेपर बनाने के लिए वाटर का वेपर बनता है तो हीट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है बल्ब को जलाने के लिए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को अगर मेल्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, वो वैक्स का वैक्स ही रहेगा, ठीक है, इसके शेप में चेंजेस होगा। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को किसी भी तरीके से आप फोल्ड कर रहे हो, उसको फिर से ओपन करोगे तो वो सेम पेपर के ही फॉर्म में आएगा। तो ये एक तरीके का शेप, साइज, कलर, ये सब में चेंज होने पर ही क्या हो जाता है, आपका फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को अगर रस्ट हो जाता है, आयरन जब रस्टिंग हो जाता है, ठीक है, जंग लग जाती है उसमें, तो ये एक केमिकल चेंज हो जाता है। उस रस्टिंग आयरन से फिर से आप उस एक केमिकल चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर भी जब बर्न हो रहा है तो ऐश के फॉर्म में आ रहा है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दैट इज द केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल ऑल्सो, ओके। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का सड़ जाना भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगर मिल्क को आपने कर्ड बना दिया है तो क्या आप फिर से उसको मिल्क के फॉर्म में ला सकते हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।